Everyone. I think everyone is in, so we can start. How was the day off? How was the assignment yesterday? I mean, on Tuesday. So was everyone able to try clustering on some other data set also? Or you didn't try on any other data set? Quick yes, no. Am I audible to everyone? Remember that day we checked the clusters by cluster labels, right? So it's the same thing that we have to do. What was the biggest drawback of using k-means? Anyone help me with that? Does anyone remember? Model becomes overfit. Uh, okay. Information about Mm, overfit. How do you know model is overfitting in clustering? That's the biggest thing. You don't have any train or test, right? How do you know it is overfitting? You didn't define any criteria actually, which says the model is overfitting or underfitting. That was the other biggest disadvantage of k-means, and that biggest disadvantage is hidden in its name itself. Quickly tell me, and this should be, I mean, this should come from you guys only. What are the disadvantages of k-means? So that's where next algorithm will be. That's the basis for our next algorithm. Finding perfect value of k, exactly. Finding the value of k is error prone, right? We tried with different values of k, calculated our Lotte score and everything, right? That's the biggest advantage, right? What do you think could be done to solve that?
So, in order to help out there, we have a new clustering technique called hierarchical clustering. Okay. And this is one of those techniques which actually helps us, uh, you know, forego with finding k values, right? Okay. Anything that you can think of with the name hierarchical, anything that you can correlate with the name hierarchical. कोई एल्गोरिथम पढ़ा है जिसमें ऐसा कुछ hierarchies follows होती हैं अभी तक? राइट, एग्जैक्टली जैसे हमारा डिसीजन ट्री में होता है कि देर आर सम हिरारकीज, राइट? तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको तुम ब्रेक करते जाते हो, राइट? दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? अब इस केस में तो हमें क्या करना था कि वी हैड टू असाइन सम लेबल्स, राइट? So we kept on dividing, right? This is also very similar. So what we do is, so let's say we have data points. जैसे एक डेटा पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से चलेंगे, ठीक है? देर आर टू अप्रोचेस विच इज बॉटम अप एंड टॉप डाउन, ठीक है? सो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, लेट्स से ये और ये दोनों सिमिलर है, तो जैसे ये सिमिलर होंगे इन दोनों को ऐसे जोड़ दो। फिर देखा अच्छा ये और ये सिमिलर है, अच्छा इन दोनों को जोड़ दो। फिर देखा ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों को जोड़ दो। फिर देखा ये वाला जो है ये वाले से बहुत सिमिलर है, तो इन दोनों को जोड़, ठीक है? एंड इवेंचुअली ये सारे के सारे ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है? तो एज दिस 1 2 3 4 5 6 6 डेटा पॉइंट्स, उनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड नथिंग बट अ डेंडोग्राम, ठीक है? Now the question comes out here that I don't have, why do I not need to find the value of k? So जब हम ये डेंडोग्राम्स बना लेते हैं, the next step is to find कि कहाँ से हम डिवाइड करें, ठीक है? So let's say I ask, मतलब what I do is मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ my data point। तो जैसे ही मैंने यहाँ से डिवाइड किया तो मैंने देखा ये दो बार टच कर रहा है, तो दैट मीन दिस इज नथिंग बट योर क्लस्टर साइज इज 2। अगर मैंने ये यहाँ पे किया होता तो क्लस्टर साइज क्या आता है? So just based on this dendrogram, you can decide whether you want to break it at 2 or whether you want to break it at 3, right? ठीक है? Cool. Everyone got the basic intuition of hierarchical clustering? Yes, no?
ये हमारा बॉटम अप था। टॉप डाउन में क्या होएगा, यहाँ पे सारा डेटा होगा। ठीक है, उसको हम ऐसे ब्रेक करते जाएंगे। एनी क्वेश्चंस अप टिल हेयर? ग्रीन लाइन? दिस वन? ग्रीन लाइन और रेड लाइंस? ओके ओके। Basically, what do we do? Firstly, everyone understood the dendrogram structure. Okay. Now, once you have the dendrograms, okay, all you need to next do is just use those dendrograms. There will be a dendrogram diagram which will help you visualize where to break your uh, data points, right? तो इस डेंडोग्राम डायग्राम में क्या करते हो तुम? यू सी कि मैं इस लाइन पे ब्रेक करूं, इस लाइन पे ब्रेक करूं, या कहीं और पे, राइट? एंड जिस भी लाइन पे मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने सोचा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वांट टू ब्रेक इट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, ये वाई एक्सिस ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसमें कुछ इशू आ रहा है। लेट्स से इफ आई डिसाइडेड टू ब्रेक आउट हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल ऐसे लाइन ड्रॉ करी। एंड जहां जहां पे ये मेरे डेंडोग्राम्स को टच कर रहा है, ये उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स में पास आ जाएंगे। यहाँ पे किया तो यहाँ, इसमें मुझे के की वैल्यू बिफोर हैंड नहीं पता होने की जरूरत। ठीक है, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज बिकॉज आई कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ। No, no, by visualizing. So visualize this particular chart, okay, and then we'll get to it. Okay. No, no, there is no assumption, ना. Assumption is कि कुछ भी कर लो, राइट? यहाँ पे विजुलाइज करके हम लेके आ रहे हैं, राइट? So what if the data set is big? Then also we'll use the same structure to visualize. Okay. तो उसमें क्या करोगे तुम, सैंपल पे विजुलाइज कर लोगे, देन यू विल कम अप कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे ब्रेक करना है। ओके, so first thing is creating those dendrograms, then the easier piece is deciding कि कहाँ पे ब्रेक कर। ओके, so the focus should be how to create those dendrograms is a bigger problem, right? नो इश्यूज, नो इश्यूज, दैट्स एन इंट्यूशन। सो इंट्यूशन इज कि तुम सारे डेटा पॉइंट्स को लेके क्लब करके ऐसे एक डेंडोग्राम स्ट्रक्चर बना लेते हो। दूसरा अप्रोच है सारे डेटा पॉइंट्स ऊपर हैं और उससे ब्रेक ब्रेक करके यू क्रिएट अ डेंडोग्राम स्ट्रक्चर। एवरीवन इज फाइन विद द डेंडोग्राम स्ट्रक्चर, देन यू अंडरस्टूड। Everyone fine with the intuition? We'll go in details, so don't worry.
Should I explain once more? Let's see. This is the structure I was talking about. Okay, and this data set, I mean, this is the auto MPG data set which we worked on earlier also, right? So won't go into what we did. This is the final dendrogram structure we have out here, right? So here, if you see on the left hand side, we have these values, right? And on x axis ये सारे data points होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे तुम देखो ये सारे कर करके cluster कर करके we have reached up to here. Okay. So now let's say if you decide to break off at point 8, so we call it a cut method, cut tree method. तो यहाँ पे हम height बताते हैं कौन सी height पे देना है, ठीक है? जैसे इस केस में हमने 7 पे किया था, somewhere here. इससे ऐसे ब्रेक करेंगे तो क्या होएगा? How many clusters will we get? 2, right? And अगर मैंने 5 पे ब्रेक किया होता तो how many cluster would I have get? 5 पे somewhere here. 3, right? So now the intention is to identify कि मुझे 7 पे ब्रेक करना है या 5 पे ब्रेक करना है, और इस तरीके से ब्रेक करना है कि मेरे जो क्लस्टर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है? So that's how you will try to do. Okay. Now let's go in the details on how this algorithm works, right? Step by step, and then we'll revisit. But you got how we created this dendrogram and how we can cut and make clusters, right? तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि अगर तुमने इधर 3 पे ब्रेक किया तो देखो कितने सारे क्लस्टर्स बन रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ दोस क्लस्टर्स आर नॉट एट ऑल, आई मीन 1 2 3 4 5, पता नहीं कितने 10 20 कितने क्लस्टर्स बन जाएंगे, राइट? विच नॉट बी मीनिंगफुल इनफ, यू गो बैक, ठीक है? अब वो क्लस्टर्स रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, अगेन यू हैव टू चेक द सेम थिंग। ओके, वहां पे कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे हमने के मींस में किया था, इट्स द सेम थिंग दैट यू विल हैव टू डू। सर देन तो फिर किसी भी डेटा सेट में फिर दो ही हमें वो लेने पड़ेंगे, दो ही बनेंगे हमारे। क्यों? प्लस सर मैक्सिमम हाइट पे हम कर दें कट तो फिर दो बन जाएंगे, तो यही दो। फायदा है क्या? तो वही तो सर। नहीं नहीं, तुम दो क्यों लोगे? अब क्लस्टर सब जैसे इसमें हमने लिया तो इसमें भी तो 7 पे लिया, 2 पॉइंट्स लिए ना आपने भी इस पे, जो क्लस्टर दो 7 सेवन, पे। नहीं नहीं, 7 पे लेके वी चेक ऑल दीज वैल्यूज कि ये क्लस्टर्स आर मीनिंगफुल और नॉट। आई चेक द सिलोटे स्कोर, if it is coming fine, I'm fine, right? If not, then we'll reduce or change the height, right? At the end, ओके। you have to find meaningful clusters. Okay? Just understand this thing that you don't have anything to check with. Okay? Because इसमें हमारे पास टारगेट नहीं है कि 2 में करना है, 4 में करना है या 10 में करना है। There might be scenarios जहाँ पे 10 clusters भी good enough होंगे। तुम्हें देखना है तुम्हारे डेटा सेट में कितना मैच कर रहा है, ठीक है? इस केस में आई थिंक अगर मैं 3 चूज करूंगा तो आई विल हैव अ वेरी गुड सिलॉटे विड्थ एंड एवरीथिंग, एंड देन आई हैव टू इंटरप्रेट दोस क्लस्टर्स। तो याद है जो हम क्लस्टर सेंटर्स निकाल के वी यूज टू इंटरप्रेट, दैट इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। What assumption did we make till now in this data, Akansh? ये वैल्यू तो नहीं करी ना हमने कोई भी assumption?
ये के वैल्यू तुम्हें उसमें बिफोर हैंड पता होनी चाहिए थी। उसमें याद है तुम्हें कोई भी तरीका नहीं था विजुअलाइज करने का। इसमें since it's a bottom up and top down approach and you have these dendrograms, so you can see all the data points by yourself. What height should be used, that's something you will have to know. Okay, so वो एक tunable parameter है, ठीक है। एंड hierarchical की disadvantage यही है कि तुम्हें height देखनी पड़ेगी, right? Although number of clusters can be easily found out using this, ठीक है। उसमें क्या था, तुम्हें के की वैल्यू पता नहीं होती थी कि तुम 2 पे रखो या 3 पे रखो। इसमें क्या है कि तुम्हें ये पता है कि मेरे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, तो अगर मैंने इधर कुछ ब्रेक किया तो ये तो बहुत ज्यादा क्लस्टर्स बन रहे हैं, तो दे माइट नॉट बी मीनिंगफुल इनफ। सो लेट मी स्टार्ट विद समथिंग लाइक 4 और 3 क्लस्टर्स, मे बी आउट हेयर। इस लाइन पे अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो कितने क्लस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन पे मैं ब्रेक करता हूँ वर्सेस इस लाइन पे ब्रेक करता हूँ, सो आई नो कि देयर इज नो पॉइंट इनसाइड दिस होल डेंडोग्राम जिसमें मे बी 4 क्लस्टर्स विल फिट इन, क्योंकि 3 के बाद सीधा 6 ही हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया तो 3 है, राइट। इस तरह ब्रेक कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5, इनफैक्ट 6 क्लस्टर्स आ जाएंगे। अगर मैं इधर किया और थोड़ा सा भी नीचे गया तो 8 हो जाएंगे, राइट। तो देर इज नो स्कोप फॉर द 7 क्लस्टर एट ऑल। ओके, ठीक है। So let's walk through the algorithm in detail and then let's try to use it on the data and then see what are the advantages of it. ठीक है। So in the beginning, what we assume is that each data point is cluster in itself. ठीक है। So there are two approaches, as I said, bottom up and top down. ठीक है। तो bottom up में क्या होता है, and what we also called it as a agglomerative hierarchical clustering at times, ठीक है। Why agglomerative? Because it tries to aggregate the data, ठीक है। So in the beginning we assume that each data point is a cluster itself, ठीक है। तो for example, we go to the same example that we just created. I have, let's say, data point out here. This is 1 2, I have this 6 data points. Okay. So firstly, what I'll do is create a similarity or distance matrix. Okay. And what I'll assume is कि मेरे डेटा में 6 ही क्लस्टर्स हैं। जितने डेटा पॉइंट उतने क्लस्टर्स, राइट। So what I assumed was the data point has how many? 6 clusters. ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई डिस्टेंस की, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। जिसका भी लीस्ट डिस्टेंस होगा या फिर मैक्सिमम सिमिलैरिटी होएगा, उन दोनों को मैं बस क्लब कर दूंगा, ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट इटरेशन में इन दोनों के लिए मेरे पास मैक्सिमम सिमिलैरिटी, मे बी दीज पॉइंट्स आर 3 और 4 आउट है। ये वैल्यू 20 थी, बाकी सारी वैल्यूज इससे कम है सिमिलैरिटी वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्लब करके एक क्लस्टर में डाल दूंगा, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम ये पूरा रिकम्प्यूट करूंगा तो इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यूज 3 4। And similarly we will keep on repeating.
ओके, जो भी नेक्स्ट हाईएस्ट सिमिलर होगा फिर उसको चूज कर लिया, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। ओके, so let's try to visualize this and try to understand this particular thing in a better way. So let's say these are the 6 data points that we have, and what we want to do is we want to create a dendrogram for this, because once we have the dendrograms, then we have the final values, right? So भी हमने क्या किया, assume किया कि सारे के सारे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं, तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एंड हमने उन सबको एक स्केल पे डाल दिया, ठीक है, एंड वी assumed each data point as its own cluster, ठीक है। अब हमने सारे डेटा पॉइंट्स का सबसे डिस्टेंस निकाला, एंड वी कैन यूज एनी ऑफ द डिस्टेंस मेट्रिक्स दैट वी कवर्ड, ठीक है। सो यूक्लिडियन है, और कौन कौन से डिस्टेंसेस वी स्टडीड? डज एनीवन रिमेंबर? मैनहट्टन, कोसाइन। So always remember cosine. Cosine similarity is the मतलब one matrix that we'll keep on using a lot of times. To use Euclidean distance, take है? Based on Euclidean distance, we found out these 2 points are together, these two, and this is like totally a different point. So हमने डेंडोग्राम्स बनाए ए बी ई एफ सी डी जी, ठीक है। अब यहाँ तक तो जब सिंगल पॉइंट से वी डिड, ठीक है। नाउ each of the clusters except the last one, ठीक है। अब हमारे पास देखो तो 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 चार क्लस्टर्स हो गए अभी, यस और नो? पहले हमने कितने एज्यूम किए थे कि 6 होंगे, फिर हमने देखा ये सारे सिमिलर हैं, 1 2 3, और ये अभी भी अकेला है तो 4, ठीक है। अब मुझे जब फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से क्लस्टर्स कैन बी क्लब टुगेदर, ठीक है, हाउ कैन आई डू दैट? डू यू थिंक अब मेरे पास इस क्लस्टर में एलिमेंट्स है ए बी, इस क्लस्टर में ई एफ, इन दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? व्हाट डू यू थिंक? सोचो सोचो। सेंटर पॉइंट टू द सेंटर पॉइंट, यस दैट इज वन अप्रोच, by taking both as one can calculated distance, both as one calculated distance मतलब मैथमेटिकली बता दो तो, लेट मी, ठीक है, यही वाले क्लस्टर्स थे। सो इस क्लस्टर के अंदर पॉइंट था, एक था ए, लेट मी clear this out. So I have this point A and this point B. ये मेरा cluster C1। I have another cluster out here, इसमें ये point C है, ये point D है, तो C and this B point. Okay, this is cluster C2, ठीक है। So one of the approach which Yatin told is दोनों point का centroid ले लो, ठीक है। So this is my centroid, इनका भी जो centroid होगा, और use this particular distance as a metric, as a similarity matrix. Okay. Now this is one approach.
Any other approach that you could think of? So this is called, so when we try to link two particular clusters and find their similarity, so these are defined by something called linkage functions. So one of the linkage functions that you just defined is centroid. Okay. There is another linkage function called सिंगल लिंकेज. सिंगल लिंकेज में क्या करते हैं हम, जो भी पॉइंट्स क्लोजेस्ट होंगे उनको कंपेयर करेंगे. तो बेसिकली अब ये क्लस्टर और ये क्लस्टर के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो जो ये थोड़ा मैं सेंटर से निकालूं, मैं इस क्लस्टर का जो एंड पॉइंट है ये, इस क्लस्टर का जो एंड पॉइंट है ये, इनके बीच में डिस्टेंस निकालूंगा. राइट. क्योंकि डोंट अज्यूम ये दो होंगे, जब बहुत सारे पॉइंट्स पॉइंट्स होंगे, मैं हर बार सेंटर में थोड़ा जाता रहूंगा. राइट. दिस इज कॉल्ड सिंगल लिंकेज मेथड. Everyone good with this? Yes, no? What about others? Is it clear? Okay. Single linkage, centroid linkage. ठीक है. Another one is called complete linkage. उसमें क्या करते हैं, जो भी फारदेस्ट एलिमेंट होंगे उनको कंपेयर करेंगे. मैं इस ए को और इस डी को कंपेयर करूं जो सबसे दूर है. ठीक है. एंड व्हाट यतिन टोल्ड, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट अ एवरेज क्लस्टरिंग. ठीक है. एवरेज लिंकेज, विच इज नथिंग बट इन दोनों का मीन है. ठीक है. क्योंकि हम ना सबसे पास वाला एलिमेंट कर रहे हैं, ना ही सबसे दूर वाला, बट बीच वाला. ठीक है. कूल. नाउ कैन यू विजुअलाइज एंड थिंक कि इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट सिंगल लिंकेज. कैन एनीवन थिंक ऑफ दिस? याद रखना, सिंगल लिंकेज में जितने भी पास वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्लब करे जा रहे हैं. अगर मेरे एक क्लस्टर में ऐसे एलिमेंट्स थे, ठीक है, मान लो ये थे, और अगले में एक ऐसे है. ठीक है. तो ये सिर्फ इनको कंपेयर करे जा रहा है. अब इन दोनों को कंपेयर करके अगर ये पास में भी होंगे तो ये एक ऐसा बना देगा बड़ा क्लस्टर. तो you'll फाइंड कि इट इज मेकिंग चेन्ड क्लस्टर्स. कैन वी से दैट point may be distinct from other points in a cluster? Okay.
अगर तो वो होगा तो वो फिर सेम क्लस्टर्स में नहीं होंगे ना यतन, क्योंकि वो हम पहले ही ग्रुप नहीं करेंगे, राइट? ठीक है। सो द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल लिंकेजेस कि हमारे चेन्ड क्लस्टर्स बनते हैं, क्योंकि हम बहुत ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग के पॉइंट्स कर रहे हैं। ठीक है। कंप्लीट लिंकेज में क्या होंगे? ठीक है। व्हाट इज द advantages and disadvantages? In general, what we desire of is कि हमारे पास पूरे बड़े बड़े spherical clusters आए। ठीक है। That's what it is desirable. Why? क्योंकि हमारे जो Silote width है, जो हमारा metrics है, which we use to check कि clusters is good or not, it actually is obsessed with spherical clusters. Okay. उसमें ऐसे चेन कुछ नहीं है, तो लाइन की तरह क्लस्टर्स बनते हैं which are not so good. Complete linkage, on the other hand, will give you spherical clusters at every time. ठीक है, क्योंकि हम एंड पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं, तो बेसिकली व्हाट इट मींस इज कि जो भी क्लस्टर्स बनेंगे वो बहुत ही डिफरेंट बनेंगे। ओके। बट कई बार ये हो सकता है स्फेरिकल कंप्लीट, बेसिकली जो हम कंप्लीट लिंकेज बोल रहे हैं उसमें, सिंस इट्स कंप्लीट सो इट इज टेकिंग मैक्सिमम। ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे जो क्लस्टर्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे बने, राइट? क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, राइट? एंड दैट्स वेयर आर average clustering or group average comes into place, which is mix of both. Okay. Is it fine with everyone till here?